So now here I am going to taking your class, social science class, and our today's topic is from the geography. So please note and please keep your book according to your timetable. The topic which you got yesterday in the Zoom schedule, as I know that you already familiar with the topic motions of the earth, and you got the topic yesterday. You already got the topic yesterday, motions of the earth. Please open your book according to the topic, motions of the earth. And we have already started this chapter in our previous class. We have already started this chapter in our previous class, motions of the earth. And the 2 pages, some topics we have already read. So now I'm going to start your next topic, that is on page number 125, rotation. Okay, so the topic name is rotation. Today's topic name is rotation, because rotation topic we have not read already. So for this rotation, I know that you have read about the rotational revolution in your 5th standard. Are you? Have you read about the rotation of the earth and revolution of the earth? Yes, Arnika Gupta has sent me the message. Yes, ma'am. So I know कि आपको rotation के बारे में भी पता है कि earth rotate कैसे करती है and earth revolution कैसे करती है. So here I am going to show you a picture of rotation, picture of the earth, picture of the globe. Please concentrate on your book, on my wordings. Don't look here and there, otherwise you will not understand what is rotation. Okay, so because here I am going to show you a picture of the globe, how it rotates. Okay, rotation. Here the rotation is the spin of a second. Okay. Okay, so again, I'm going to share a screen for you. See this screen? This is an arrow. This is white arrow. So this arrow shows that Earth rotates from west to east. Earth की rotation किस direction से होती है? West direction, because this is west direction and this is east direction. So Earth rotates from west to east and takes about 24 hours to complete one rotation. एक राउंड को अपनी ही जगह पे एक राउंड कंप्लीट करने में, सी दिस राउंड, अपनी ही जगह पे राउंड को कंप्लीट करने में अर्थ जो है वो कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स.
Okay, rotation means when earth rotate on its axis and take 24 hours, so that means one day. Next we have the one half of it would have permanent daylight and become very hot. So 24 hours में वो क्या करती है, अपनी जगह पे उसको rotate करती है, and half part having a daylight and half part is having a night. So this is about the rotation. Next we have revolution. Sorry, after before the revolution I am going to give you some effects of rotation. Earth rotate तो करती है, but what is the effect of rotation? What are the effects of rotation? Rotation का क्या effect पड़ता है? Rotation क्यों जरूरी है? If earth does not rotate, then what will be the effect? Rotation is very much important for the human beings on the earth. Why? Effects are given on the page number 126. You can see पेज नंबर 126 पे इफेक्ट्स हैं. अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट, बिकॉज अक्रेंस हमारा दिन चेंज होता है, रात जो है वो चेंज होती है. डे एंड नाइट चेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन. अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो पूरा दिन गर्मी रहेगी, पूरा दिन डे लाइट ही रहेगी, और कई जगह पे पूरा दिन नाइट रहेगा. ओके, सो सेकेंड इफेक्ट क्या है? सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट. ये जो हम देखते हैं कि सन जो है वो राइज हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? ईस्ट से. बट इन रियलिटी क्या है कि सन जो है वो स्टेशनरी है. ओके, सन इज स्टेशनरी. इन रियलिटी सन इज स्टेशनरी. सन कैन नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. सन तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है. ओनली अर्थ रोटेट. हम बोलते हैं कि सन जो है वो ईस्ट से राइज हो रहा है और वेस्ट में जा रहा है, बट सन तो घूम ही नहीं रहा, सन तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा. तो हमें कैसे पता चल रहा है? बिकॉज अर्थ मूव कर रही है, अर्थ की मूवमेंट हो रही है, तो सन की पोजीशन अब जो है वो उसी जगह पे ही है. सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट थर्ड वन इज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स ऑफ एंड ओशियन करंट्स. आपने देखा है कि जो ओशियंस में, सी में क्या आते हैं? करंट्स. करंट्स होती हैं वेव्स. ओशियन में वेव्स आती देखी हैं? वो वेव्स कैसे आती हैं? उनको कौन लेके आता है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन. अर्थ रोटेट कर रही है, तो सी और ओशन में भी क्या आ रही है? वेव्स आ रही हैं. आपने पानी देखा है वो बीचेस पे आता हुआ, सी शोर पे आता हुआ? बीचेस पे कितनी सारी वेव्स आती हैं. सो बिकॉज ऑफ द, किसके कारण आती है? रोटेशन के कारण. सो नेक्स्ट वन, फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर. सो अर्थ रोटेट करती है, दैट मीन्स पोल्स पे वो क्या हो जाती है? फ्लैट हो जाती है, एंड इक्वेटर पे वो बल्ज हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव अक्रेंस ऑफ टाइड्स ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार टाइड्स आती हैं. समुद्र में और उसमें ओशियन में पर डे एक दिन में 2 बार टाइड्स आती हैं. टाइड्स वेव्स, पता है आपको क्या होती हैं वेव्स? सो वेव्स आती हैं ड्यू टू, किसकी वजह से आती है? रोटेशन. नेक्स्ट, गिव अस 24 आवर्स. हमें टाइम कौन देता है? ड्यू टू रोटेशन. 24 आवर्स. अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करती तो हमारा टाइम भी 24 आवर्स का नहीं होता. ओके, हमारा टाइम जो है वो 15 आवर्स का, 12 आवर्स का इतना होता. सो हमें 24 आवर्स कौन देता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट इफेक्ट इज, सिंस द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ रोटेट कहाँ से करती है? अर्थ करती है वेस्ट से ईस्ट में. ओके, सो द हेवनली बॉडी सीम टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. हमें जो हेवनली बॉडी है, लाइक यू कैन से सन. सन इज ऑल्सो अ हेवनली बॉडी. हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, बिकॉज हमारी अर्थ उल्टी घूम रही है. हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट में जा रही है, तो हमें बाकी जो हेवनली बॉडीज हैं वो हमें क्या करते हैं? उल्टे चलते हुए दिखाई देते हैं. तो नेक्स्ट वी हैव रेवोल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक आई हैव रेवोल्यूशन. आई एम गोइंग टू शो यू अ स्क्रीन. दिस इज रेवोल्यूशन. देखो, सन जो है वो अपनी ही प्लेस पे है. सन कभी भी रोटेट नहीं करता है. सन इज स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स फिक्स. सन इज स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स फिक्स. FIXED, fixed. So sun is fixed. Sun cannot rotate, but Earth rotate. Okay, but Earth जब अपनी जगह पे घूमती है, that is rotation. But when Earth move around the sun, sun का एक चक्कर लगा के आती है, that is revolution. Okay, जब when Earth moves around the sun, that is
revolution. But when Earth move on its place means on its axis, it is called rotation. So I think you understood this rotation definition and revolution. If you understood, please raise your hands. Revolution का rotation का पता चला है? Please raise your hands. Okay. So now revolution means as the earth rotates on its axis, it revolves around the sun at the same time. Thus, revolution and rotation take place simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है एक साथ. Similarly, अर्थ जो है वो एक साथ दो काम करती है. हमारी अर्थ एक साथ टू टाइप्स की मूवमेंट करती है टुगेदर. टू टाइप्स मूवमेंट मीन्स अर्थ जो है वो रोटेशन भी कर रही है और अर्थ जो है वो रेवोल्यूशन भी कर रही है. दोनों एक साथ कर रही है. अपनी जगह पे भी घूमती जा रही है और सन के आसपास भी घूमती जा रही है. घूमते घूमते जो है वो सन का राउंड लगा रही है. So rotation and revolution takes place together. Okay. So now how much time the earth takes to complete one round of the sun? Sun का राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है अर्थ? 365 days. 365 days in a year and 4 hours. Okay. 365 days means 1 year लगता है अर्थ को पूरा राउंड लगाने में. 1 year. So the balance of 6 years adds up to a day. Thus, this extra day is added to the month of February. Like you can say 365 days और 4 और वो लगाती है. तो 4 को आप मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 4 के साथ. Sorry, 6 को मल्टीप्लाई करो 6 hours लगाती है. 365 days and 6 hours. The time is 365 days and 6 hours. You can note down or underline. The earth takes 365 days and 6 hours to complete one round of the sun. You can underline. The earth takes 365 days and 6 hours to complete one round of the sun. Okay. अब 6 hours को आप मल्टीप्लाई करो 4 के साथ. 6 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 24 आंसर आता है. 6 4 जा 24. So 24 means 24 hours means 1 day. 6 into 4 कितना होता है? 24. 24 hours means 1 day. So एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है कब? 4 years के बाद. और 4 years के बाद हम बोलते हैं लीप ईयर आ गया. 4 years के बाद क्या आता है? लीप ईयर. अब लीप ईयर क्यों आता है? बिकॉज फरवरी मंथ के 28 डेज होते हैं. बट लीप ईयर में फरवरी के पास कितने डेज होते हैं? 29 डेज. Okay. Every year February has 28 days. But जब 4 साल के बाद लीप ईयर आता है तब क्या होते हैं? फरवरी में 1 day ऐड हो जाता है. और वो 1 day क्यों ऐड होता है? वो 6 hours की वजह से. ठीक है. So every 4 years. Now the year 2016 was the last leap year. 2016 जो था वो लास्ट लीप ईयर था. तो 4 years कब हुए? 16 के बाद 17, 18, 19, 20. अभी 2020 में फरवरी में कितने डेज थे? You can see on the calendar if you are having in your room. So 2020 इस साल फरवरी में कितने डेज थे? 29 या 28? 29 डेज थे. ओके. सो इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन. मैंने आपको बताया कि रोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? डे एंड नाइट को चेंज करने के लिए, वेव्स लाने के लिए. ओके. बट अब रेवोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? Why revolution is important? Why revolution is important? Because variation of length of day and night. रेवोल्यूशन से हमारी डे एंड नाइट की लेंथ चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल सीजन्स चेंज होते हैं. अभी हमारा कौन सा सीजन चल रहा है? ये समर रेनी सीजन. ओके. रेनी सीजन के बाद क्या आएगा हमारा? रेनी सीजन के बाद वी हैव 4 सीजन्स ना. विंटर, समर, रेनी एंड ऑटम. स्प्रिंग भी है. ओके. सो रेनी को हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो हम स्प्रिंग और ऑटम को ऐड कर लेते हैं. स्प्रिंग, ऑटम, समर एंड विंटर. 4 सीजन. अब ये सीजन कैसे चेंज हो जाते हैं? अपने आप चेंज हो जाते हैं? नो, बिकॉज ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन.
किसकी वजह से चेंज होते हैं? बिकॉज अर्थ जो है वो सन का एक राउंड लगाने में बिजी है। अर्थ जो है वो सन का राउंड लगा रही है, तो हमारी अर्थ पे जो प्लेसेस हैं उनमें कुछ जगह पे सीजन चेंज हो रहे हैं। बिकॉज अर्थ जो थी वो जब तक सन के थोड़ा सा पास पहुंची थी तब हमारे इंडिया में समर सीजन था। जब सन से थोड़ा सा दूर जा रही है तो क्या आ रहा है? विंटर सीजन आ रहा है। So this way the seasons change. So next is variation in the length of day and nights. That is on page number 126. You can read variation in the length of days and nights. हम बोल रहे हैं कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और जो नाइट्स हैं वो लंबी हो जाती हैं। अभी हम पूरा दिन बैठे रहते हैं तो हमें लगता है कि दिन बहुत लंबा है और रात जल्दी से खत्म भी हो जाती है। सो बट जब विंटर सीजन आएगा तब डेज छोटे हो जाएंगे, जल्दी जल्दी अंधेरा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और नाइट्स जो है वो लॉन्ग हो जाएंगी। बट हाउ, ये कैसे होता है? इसके पीछे का जो रीजन है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बिकॉज एट द इक्वेटर द वेरिएशन इज मिनिमम एंड द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इन लेंथ। आपने वो पढ़ा है आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक Yes. So you have read about the Tropic of Cancer. You have read about the Tropic of Capricorn. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में पढ़ा है, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में पढ़ा है। बिकॉज वो क्या है? अर्थ के जोन्स हैं, अर्थ के एरियाज हैं, अर्थ के जोन्स होते हैं वो। अब इक्वेटर के बारे में आपने पढ़ा, दैट मीन्स इक्वेटर पे क्या होता है? डेज एंड नाइट्स की लेंथ इक्वल होती है। जो एरियाज लाइक इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास नहीं है, जो एरियाज इक्वेटर के पास होंगे वहां पे डेज एंड नाइट्स की लेंथ क्या होगी? सेम। बट जो उससे थोड़ा सा दूर होंगे वहां पे डेज एंड नाइट्स की लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर द डेज आर लॉन्गर इन समर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर। ओके, अगर इक्वेटर के ऊपर ऊपर जाते जाओगे या नीचे जाते जाओगे, इक्वेटर से दूर जाओगे तो आपको लगेगा उस जगह पे डेज जो हैं वो डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू नाइट्स। बट जो इक्वेटर के एग्जैक्ट इक्वेटर पे रहते हैं जो प्लेसेस, वहां पे डेज एंड नाइट सेम होते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ, हमारी अर्थ पे किसकी हीट आ रही है? सन की। हमारी अर्थ पे हीट किसकी आ रही है? सन की। सो हमारी अर्थ जो है सन की हीट इक्वल नहीं आ रही है, इक्वल हीट नहीं आती है। कुछ प्लेसेस पे ज्यादा हीट आती है और कुछ प्लेसेस पे कम आती है। लाइक मैंने आपको बताया था स्लांटिंग रेज, सन की रेज जो है किसी जगह पे स्लांटिंग जाती है, टेढ़ी हो जाती है और कहीं जगह पे सीधी जाती है। ओके, सो द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, मैंने आपको कहा था जो फॉर एग्जाम्पल अर्थ और सन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, सामने खड़े हैं, तो क्या सन की सारी वेव्स जो है इक्वल जा रही है अर्थ पे? कहीं कहीं स्लांटिंग जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अबव एंड बिलो, अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे जो है सन की रेस क्या हो जाती है? थोड़ी सी स्लांटिंग हो जाती है, कम हो जाती है। और जो बीच वाली साइड है, इक्वेटर वाली साइड है, वहां पे बहुत ज्यादा रेस जाती है, डायरेक्ट रेस जाती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ। अर्थ पे हीट एक जैसी नहीं होती है। नेक्स्ट वी हैव सीजन्स। अब सीजन्स कैसे चेंज होते हैं? लिसन, सीजन्स वी हैव लाइक द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सीजन्स का मैंने आपको पढ़ाया था कि किसके इफेक्ट से सीजन चेंज होते हैं? रेवोल्यूशन से या रोटेशन से? सीजन्स किसके इफेक्ट से चेंज होते हैं? रेवोल्यूशन या रोटेशन? You can see on the page number 126 how seasons change with the effect of revolution or rotation. Yes, revolution से change होते हैं, जो revolution है वो season को लेके आती है। Okay, so the figure given, you have no figure, I am going to show you tomorrow. So 21st June को बोला जाता है 21st June is the longest day. 21st जून 21 जून को दिन सबसे लंबा होता है।
वाई ऐसा क्यों बोला जाता है? साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की हुई है. वाई 21st जून इज द लॉन्गेस्ट डे एंड वेरी हॉटेस्ट डे. उस दिन बहुत गर्मी होती है और बहुत ज्यादा लंबा दिन होता है और रात जो है बहुत छोटी होती है. और 22 को दिन जो है वो सबसे छोटा हो जाता है और रात सबसे लंबी हो जाती है, ऑपोजिट हो जाता है. 21 जून का और 22 का आपस में क्या कनेक्शन है? वाई दे आर ऑपोजिट विद ईच अदर? 21 June and 22 December. Please listen carefully and concentrate. What is the connection? Anybody knows? Anybody know? Okay, nobody knows. So 21 June को बोला जाता है सबसे लंबा दिन और 22 December को बोला जाता है सबसे shortest day. Why? Because on this date the northern hemisphere is inclined towards the sun. इस दिन क्या होता है, जो हमारा northern hemisphere है, आपको अर्थ का हेमिस्फीयर पता है ना, नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर. सबसे ऊपर नॉर्दर्न है और नीचे सर्दर्न है. सो वो क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल सन के सामने होता है. बिकॉज अर्थ राउंड लगा रही है तो अर्थ का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो बिल्कुल सन के सामने आया होता है और सन की रेज जो है वो वर्टिकली पड़ रही होती है. कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. सो रेज जो है डायरेक्ट होंगी तो उस दिन क्या होगा, समर सीजन होगा और सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जब रेज जो है डायरेक्ट पड़ती हैं तो वो सबसे लंबा दिन हो जाता है, सबसे गर्म दिन होता है, हॉटेस्ट डे होता है. और जब स्लांटिंग रेज होंगी तब क्या होगा, तब वो हॉटेस्ट नहीं होता. सो इन सर्दर्न हेमिस्फीयर द कंडीशन आर जस्ट ऑपोजिट. सर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कंडीशन ऑपोजिट हो जाती है. आपको तो ऑलरेडी पता है, अगर नॉर्दर्न में डायरेक्ट रेज जा रही हैं तो सर्दर्न में डायरेक्ट थोड़ी जा रही होंगी. सर्दर्न में तो स्लांटिंग की जा रही होंगी ना. नॉर्दर्न में डायरेक्ट रेज जा रही है तो सर्दर्न में स्लांटिंग, ऑपोजिट हो जाएगा. और जब 22 December को हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है तो नॉर्दर्न में क्या हो रहा होता है, उस टाइम बाकी स्टेट्स में क्या पड़ रही होती है, गर्मी पड़ रही होती है. 22 December को इंडिया में सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है और बाकी जो उसके ऑपोजिट होंगे वहां पे क्या हो रहा होगा. 22 December का मैं अभी बता रही हूँ आपको, दैट इज ऑन पेज नंबर 128. 22 December you can see दिस 22 December को सर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के सामने होता है और सन की डायरेक्ट रेज जा रही होती हैं. सो समर इज द सर्दर्न हेमिस्फीयर. सो प्लेसेस having the longest day and the shortest night of the year. So 21st June and 22nd December are known as summer solstice. You can underline. This is a very important internal question and you will get in your exams also. 21st June and 22nd December are known as summer solstice and winter solstice. Summer solstice and winter solstice. So ये यहाँ पे क्वेश्चन इंटरनल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 21st जून को हम समर सॉल्स्टिक बोलते हैं और 22 दिसंबर को हम विंटर सॉल्स्टिक बोलते हैं. ओके, 21 जून को समर सॉल्स्टिक एंड 22 जून को विंटर सॉल्स्टिक. Because sun is overhead. और 21st March is called spring or vernal equinox and 23rd September is called autumn equinox. मैंने आपको सीजन्स के बारे में बताया, autumn, spring, summer and winter. Autumn, spring, summer and winter. So मैंने आपको summer solstice और winter solstice के बारे में तो बता दिया, but what about spring and autumn? स्प्रिंग एंड ऑटम के बारे में नीचे लिखा हुआ 128 पेज का लास्ट पैराग्राफ. दिस इज 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन होता है. मार्च के टाइम पे स्प्रिंग सीजन होता है तो उसको 21 मार्च को हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स. स्प्रिंग इक्विनॉक्स. और 23 सितंबर, जो भी सितंबर मंथ आना है, 23 सितंबर को क्या होगा, ऑटमनल इक्विनॉक्स. ऑटमनल इक्विनॉक्स. ओके, सितंबर में कौन सा सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है या विंटर सीजन होता है? नेक्स्ट मंथ कौन सा सीजन होगा, विंटर या ऑटम? नेक्स्ट मंथ सितंबर मंथ में विंटर सीजन होगा, ऑटम सीजन होगा. इट इज ऑटम सीजन.
सो ऑटम सीजन की डेट क्या होगी? 23 सितंबर को क्या होगा? ऑटमनल इक्विनॉक्स. ओके, so have you understood this? If not, then again please read the page number 129 table. 129 पेज पे जो टेबल है, यू कैन रीड 21 जून को क्या होता है, 23 सितंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, 21 मार्च को क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है. जून में क्या होगा? समर सॉल्स्टिक. सितंबर में क्या होगा उस टेबल पे? सितंबर में कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग. स्प्रिंग इक्विनॉक्स. और दिसंबर में क्या होता है? विंटर सॉल्स्टिक. और मार्च में क्या होता है? स्प्रिंग. सितंबर में ऑटम होता है, मार्च में स्प्रिंग होता है. ओके, सो इफ यू अंडरस्टूड यू कैन रीड दिस टेबल अगेन एंड आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी. सो सॉल्स्टिक की डेफिनेशन भी लिखी हुई है और इक्विनॉक्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है. सॉल्स्टिक का मीनिंग क्या होता है, इक्विनॉक्स का क्या होता है. ओके, so here I am going to end up the topic, and if you have any question I am going to ask from you. Just give me 1 second. Yes, Hina, you are unmuted. Yes, ma'am. Ask. Ma'am, I didn't understand how the season changed. Okay, Jila, in our next class, I'll again start this. Ma'am, your voice is breaking. Ma'am, your voice is not clear. Class, I teach you the season again. Okay, ma'am. Okay. Next is Dhanak, you are unmuted. Dhanak, you are unmuted. Dhanak, I have unmuted. Yes, ma'am. From your side. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Ask. Excuse me, ma'am. Ask Ma'am, your from the question. network. Ma'am, from the network connection, I didn't understand what is. What is? Dhanak, what is? You can ask your question, but if network connectivity is not good, you can. Okay. Dhanak, you are unmuted. Yes, ma'am. Yes. Yes. Ma'am, can you explain what is revolution as from the stand? बच्चे revolution topic is already very easy and you have read in 5th standard also. मैंने revolution कितनी बार explain किया कि sun का एक round लगाना जो है उसको revolution बोलते हैं. So easy topic जो है वो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Revolution, rotation, these two definitions are very easy. Rotation means अपनी जगह पे round लगाना और revolution means sun का round लगाना.
Okay, those who has raised their hand because of the network issue, I'll unmute you afterwards in our next class. Take a screenshot of this. मैंने स्क्रीनशॉट बच्चे ले लिया है. नवनीत, उदिता, पानिका, किरणदीप, Sophia and Avreen. I have taken the screenshot with your hands. So in our next class, I'll ask a question from you first. First turn आपकी की होगी. So here okay. But again the voice breaks and connection was lost. So here I'm going to end up the meeting. We will meet in next class. Excuse me, please end up the meeting. Yes, end up the meeting. End up the meeting.
End the meeting. Or make me host. I will end. You don't need to make anyone host and